Hello, good afternoon everyone. So it's an absolute honor to welcome you all for this insightful session on GST litigation alumni. So I would like to request CA Vivek Banka to escort today's speaker, CA Achal Kapoor from Amritsar to the dais. Let's all have a big round of applause for CA Achal Kapoor. Now I would like to request CA Mahendra Nataji to come and offer flower bouquet to CA Achal Kapoor. I think he is not here. So can I request CA Dilip Agarwal ji to offer flower bouquet? So Nata ji is here. Profile please. So CA Achal Kapoor is a national speaker on GST, a chartered accountant and law graduate, and is in taxation practice for more than a decade, around 12 years. With privilege of educating through 300 plus GST deliberation across India to professional industry and trade at large, she has prerogative of addressing an august gathering of 2200 plus participants at one point. Her profile is displayed on the screen for your reference. So now, as before we start the session, today is a special day, that is International Women's Day, and truly we have the right woman professional who has made a big name in the GST litigation. So now it's all over to you, CA Achal Kapoor. Thank you so much, Manish ji. কেমন আছেন? हाँ ভালো আছে। कुछ मैंने भी सीखी है। এখানে এসে আমি খুব খুশি আছি। So, thank you. First of all, as Sir has mentioned about Women's Day, let me have a huge round of applause for all the men sitting here who always promote the women, and we are a support pillar to each other. वो कहते हैं ना कि, और देखिए, एक तो women, ऊपर से chartered accountant, दोनों में क्या similarity है? Both are bothered about the figures. Right? May it be a chartered accountant or may it be a woman. So, even हमारा जो culture है, उसमें भी Lakshmi Narayan, Sita Ram. So, the God has even given a place to the women. So, embrace the womanhood. Enjoy the day. वैसे तो हर day Women's Day होता है, right? चलिए. So, first of all, आज का जो topic है, may I have that mic? Call the mic. It's okay. ये दे दो. It's okay, I can continue with this too. कोई problem नहीं है. Okay, I will do. No problem. Sir, I hope you don't mind if I use this part of the stair. All right, thank you. So, I am very thankful to WIPCA CA Association for giving me this opportunity कि मैं आप सबसे यहाँ interact कर पा रही हूँ, और जब मैं कह रही हूँ interact करना है, तो मुझे सच में आप लोगों से interact करना है. So, are you all ready? So, I am very thankful to CA Rahul Rungta sir, the president, CA Bikash Batwal ji, and Bikash ji, Bhaiya who is sitting here, I call him Bhaiya, so that is what I am using, and all the members of WIPCA CA Association to allow me to interact with you all. So are you ready for the session? इतना ढीला response. एक पंजाबी, सारे बंगाली, फिर भी देखो बिना माइक के भी आवाज ऊंची है. Am I right? तो आपका support तो बनता है. चलिए एक बात बताइए, कितने सारे notices आ रहे हैं?
आजकल जीएसटी में कितने सारे नोटिस आ रहे हैं, देखो बोलना तो पड़ेगा, हाँ बोलो या ना बोलो, बोलना तो पड़ेगा। काउंटिंग नहीं कर रहे हैं ना सर, ढेर लगा हुआ है, एम आई राइट? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग द समन्स कि पिछली पार्टी ने टैक्स पे नहीं किया? You know, in GST we call the scared god, the bali ka bakra is purchaser. Even if the number is given by the department और उस नंबर को डिपार्टमेंट ने दिया है, हमने टैक्स उसको जमा कराया है, बट अगर वो पर्सन जाके टैक्स जमा नहीं कराता, इट इज द टैक्स पेयर हु गेट द नोटिसेस, द आईटीसी पर्सन गेट्स द नोटिसेस, एम आई राइट? सो आईटीसी जो हार्ट एंड सोल ऑफ जीएसटी है, वही एक स्लाइम की तरह हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है। एक बात बताइए, फेक इनवॉइसिंग का टॉपिक रखा है इन्होंने, एंड इफ आई टॉक अबाउट फेक इनवॉइसिंग, ये टर्म कहां डिफाइंड है? एनीबडी हु कैन टेल मी? कहीं भी डिफाइन नहीं है, तो सर सेशन तो फेक इनवॉइसिंग पे रखा है। फेक इनवॉइसिंग टर्म ना पूरे एक्ट में है ना पूरे रूल्स में है, सिर्फ पहली बार यूज हुई एक सर्कुलर 171 में। फेक इनवॉइस इज नथिंग। फेक इनवॉइसेस, इट हैज ऑल द क्रेडेंशियल्स ऑफ अ वैलिड इनवॉइस। सर एक असली इनवॉइस से ज्यादा सच्चा लगता है फेक इनवॉइस। सारे पर्टिकुलर्स हैं, डेट, प्लेस, नेम, एड्रेस, रिवर्स चार्ज, नो, the supplier's particulars, the receiver particulars, then what is this fake invoice? जो underlying goods और services हैं वही exist नहीं करते, that is called a fake invoice। अब ये fake invoicing होती क्यों है? किसी भी लॉ को समझने से पहले देखो सर, बात तो थोड़ी थोड़ी मेरे से करनी पड़ेगी, और अच्छा साथ वाले को जरा जगाते रहिएगा अगर कोई सो जाए, नहीं तो मुझे बता देना, फिर मैं गुड मॉर्निंग कर दूंगी। सो इतना काम तो मेरा कर सकते, जरा हिलाना थोड़ा सा, बड़ी दूर से आई हूं मैं आपसे बात करने, राइट? चलिए, सो एक बात बताइए, फिर फेक इनवॉइसिंग का जरूरत क्यों पड़ी? फेक इनवॉइसिंग की जरूरत पड़ी क्योंकि किसी को आईपीओ लेके आना है। When we know the gist of a particular law coming into being, then we understand ये होता क्यों है। फेक इनवॉइसिंग की जरूरत पड़ी क्यों? बैंक के लोन्स चल रहे हैं, the bankers are sitting over there and they are nodding their heads, हाँ हाँ हाँ, टर्नओवर चाहिए, प्रॉफिट हो ना हो, टर्नओवर घूमनी चाहिए अकाउंट्स। ये क्यों आता है? क्योंकि अच्छा, फेक इनवॉइसिंग में गवर्नमेंट को लॉस कैसे है? आई टेल यू, फेक इनवॉइसिंग में लॉस ऐसे है। अब the two gentlemen who are sitting here, let me take them, so no offense, he is the one who is supplying the goods। ये goods supply करते हैं, इनको टैक्स का नहीं है, ये तो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, he is supplying the goods, but sir sitting at the back, he is the one, sorry, who has no ITC but all other ITC का कॉलम जो गवर्नमेंट ने दिया, स्टार्टिंग में टैक्स पेयर ने उसको खुले से यूज किया, इतने खुले से यूज किया कि मुझे एक पार्टी का नोटिस आया, मैंने बोला नोटिस किस चीज का? कहता इंटरेस्ट का नोटिस आया। इंटरेस्ट कितना? 25 लाख। मैंने बोला कैसे? कहता मैडम मैंने आज तक पार्टी से टैक्स नहीं भरवाया। मैंने कहा वो कैसे? कहता जिस महीने टैक्स बनता था उस महीने ऑल अदर आईटीसी में फिगर उठा लेता था। सो मेरी पार्टियां तो बहुत खुश है। तो मैंने कहा ऐसे तो तुम्हारा आईटीसी बहुत ज्यादा हो गया होगा। ही आंसर्ड मी नहीं, जब सितंबर आती थी देखता था 2B में कितना आईटीसी है, बैलेंस उठा के रिवर्स कर देता था, अगले महीने परचेज आ गई होती थी, तो पार्टी का किसी महीने टैक्स नहीं बना, लेकिन इंटरेस्ट 25 लाख की डिमांड है। सर ब्रेक ऑफ ट्रस्ट हुआ, टैक्स पेयर और गवर्नमेंट दोनों में हुआ, खुले से ऑल अदर आईटीसी को यूज किया गया, बट किस कंट्री में रेवेन्यू लीकेज नहीं है? इवन इफ यू सी the countries who are in the top list, सब जगह है, कहीं ज्यादा कहीं कम, but now the law is getting framed in a way in order to get hold of that, जो genuine taxpayer है वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा सफर करने लगा है। So अब जब ये बात आई कि फेक इनवॉइसिंग होती क्यों है,
माल आता है अनरजिस्टर्ड से और एक पर्सन ऑल अदर आईटीसी के कॉलम में आईटीसी लेना शुरू कर देता है। ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से वो पहुंचता है उसी पर्सन के पास जिसने अनरजिस्टर्ड पर्सन से माल लिया। एग्जाम्पल मी, मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन विकास जी से माल लिया और मैंने जीएसटी का आईटीसी लिया इनसे। मैंने माल भी लिया और आईटीसी भी लिया, बट आईटीसी तो वो आईटीसी था जो कहां लिया गया था? ऑल अदर आईटीसी के कॉलम में, जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। कौन सी मार्केट है? मे यू चेक द सूरत मार्केट, डायमंड ट्रेडिंग। डायमंड ट्रेडिंग में प्रैक्टिकली क्या होता है? देयर आर द मिडल मैन। आज विमेंस डे है तो लेट्स टॉक अबाउट अ लिटिल डायमंड्स। वैसे तो मेन शुड ऑल्सो नो अबाउट इट, गिफ्ट तो आप ही को देने होते हैं। Am I right? So diamond merchant went to Surat. There are business terminology that is used. आंगड़िए होते हैं, the middleman. आंगड़िया आपको कमरे में ले जाता है, डायमंड दिखाता है, बोलता है बताइए भाई डायमंड पसंद है? आप बोलते हो क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। कहता है ठीक है ये लीजिए बिल। अब वो होता क्या है? डायमंड तो आता है इनसे और बिल आता है इनसे, और ये बिल में आईटीसी एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो ऑल अदर आईटीसी में ली हुई एक फिगर है जो घूम रही है। बट बलि का बकरा कौन बनेगा? मैं, because I have taken the fake ITC and that fake ITC I have used to supply diamonds to him. मैंने उस ITC को यूज कर लिया है। सेकेंड, एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर माल उठाता है एक्स से, बिल आता है वाई से, एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करता है और उस ऑल अदर आईटीसी का रिफंड लेता है जो कभी था ही नहीं। एनकैशमेंट ऑफ द फेक क्रेडिट। Why this has been done? There are so many reasons. So सबसे पहले let me open the PPT. And who says chartered accountants are boring? Are we? No. So all the PPTs are so colorful. I hope you will enjoy that. And I always consider that a picture is worth 1,000 words. So हमें याद रहती है. Have a look. Friends, सबसे पहले जो फेक इनवॉइस डिफाइंड है वो तो 2 क्लॉज 66 में डिफाइंड है, बट इस फेक इनवॉइस कहीं डिफाइंड नहीं है। उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वैलिड इनवॉइस के, बट क्या नहीं है? ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस तो है बट गुड्स और सर्विसेज नहीं है। क्यों किए जाती है फेक इनवॉइसिंग? इवेजन ऑफ जीएसटी, टैक्सेबल आउटपुट पे ना करना पड़े, जैसे उस अकाउंटेंट ने किया, टैक्स ही नहीं भरना पड़ेगा, ऑल अदर आईटीसी में फेक आईटीसी उठा लिया। सेकंड, एनकैशमेंट ऑफ द एक्सेस आईटीसी, इन्फ्लेटिंग द टर्नओवर्स, बुकिंग फेक परचेजेस टू गेट द इनकम टैक्स बेनिफिट, इनकम टैक्स में खर्चा लेने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग, डाइवर्जन ऑफ कंपनी फंड, दैट इज व्हाई फेक इनवॉइसिंग इज डन। अब सुनिए फेक इनवॉइसिंग होती कैसे, एंड आई विल टेल यू द केस स्टडी। आंसर आप लोग देंगे सेशन के एंड में। So are you ready at the back, ma'am? पता है जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, वही मार्क जुकरबर्ग बनते हैं और वही सारे इन्वेंशन, चाहे एप्पल हो चाहे जो मर्जी हो, लेकर आते हैं। So I expect all of you to answer and be the part of the discussion. अच्छा एक बात बताइए, फेक इनवॉइसिंग में I give you a case study. There is a party and at the end I will also show you the reply specimen also कि हमने उसको डील फॉर कैसे करना। There is your party जिसका आप ऑडिट करा रहे हैं and the party's name is R. R को नोटिस आ गया, is it mine? No. चलिए, R को नोटिस आ गया कि भाई तुम्हें तो ITC का रिफंड देना पड़ेगा. It is not there. It's okay. जी, आर को नोटिस आ गया कि तुमने आईटीसी लिया है, तुम्हें उसका जो आईटीसी है पिछली पार्टी यानी एस का आईटीसी बोगस है। एस को शो कॉज नोटिस गया है सेक्शन 74 में। लिसन, आर इज द पार्टी जो आपका क्लाइंट है। आर को नोटिस आता है
क्यों तुम्हारा आईटीसी डिसअलाउड ना कर दिया जाए? क्योंकि एस ने जिससे परचेजेस की है, एस हैज बीन इश्यूड अ शो कॉज नोटिस कि उसकी परचेजेस बोगस है। क्या आपको कैंसलेशन के नोटिस आ रहे हैं? यस। पिछला नंबर कैंसिल कर दिया जाता है विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। आर यू फाइटिंग? हम पता है क्या करते हैं, हमें एडवोकेट्स बनना पड़ेगा जब हम नोटिस के रिप्लाई देते हैं, जब हम लिटिगेशन लेते हैं। हम सीधा फैक्चुअल बेसिस पे अपना रिप्लाई देने भागते हैं। 3B वर्सेस 1, ओके, लेट्स फाइंड आउट क्या डिफरेंसेस है। नो, हमें पहले देखना पड़ेगा नोटिसेस में फ्लॉ कहां कहां है। डिड यू एवर बॉदर टू चेक ऑफिसर ने डिन लगाया है कि नहीं? नो। डिड यू बॉदर टू चेक ऑफिसर ने साइन किए हैं कि नहीं? वो ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट भी है या नहीं? क्या उसने सेक्शन 73, 74 के प्रोविजन फॉलो किए? वी नीड टू रेज द ऑब्जेक्शन। लॉ कोई भी हो, चाहे 148 हो इनकम टैक्स का, चाहे जीएसटी के नोटिस रिप्लाई हो, फाइंड आउट द डिफरेंसेस फर्स्ट कि ऑफिसर को नोटिस कैसे इशू करना चाहिए था। मुझे बताइए, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है, डिपार्टमेंट पे या टैक्स पेयर पे? सर, द बॉल, हमने तो सेल्फ असेसमेंट कर दी। इन जीएसटी फर्स्ट असेसमेंट इज सेल्फ असेसमेंट। हमने सेल्फ असेसमेंट कर दी। नाउ हु इज मेकिंग द एलिगेशन कि आपकी सप्लाई बोगस है? दैट इज द डिपार्टमेंट हु इज मेकिंग द एलिगेशन, एंड द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द डिपार्टमेंट हु मेक्स द एलिगेशन, एक्सेप्ट आईटीसी। क्योंकि आईटीसी में पर्टिकुलर सेक्शन है, सेक्शन 155, which says taxpayer burden of proof तुम्हारे पर ही रहेगा। So it is the department। आपको ये आता है, पिछले वाले पर्सन का नंबर कैंसिल हो गया, उसने स्टेटमेंट दे दी मैं बोगस इनवॉइसिंग में हूं, क्या आपने उसका क्रॉस मांगा? क्या आपने उसकी स्टेटमेंट की कॉपी मांगी? एक पर्सन के स्टेटमेंट देने पर कि भाई मैंने तो बोगस में डील किया है, that does not render your transaction to be a suspicious transaction. If you have documents to prove the trail, वो आपके पास होनी चाहिए। मूवमेंट आपको एक्सप्लेन करनी है। ई-कॉम कॉफी गिल, आजकल हम लॉ पता है कैसे पढ़ते हैं? व्हाट्सएप के थ्रू। अच्छा, अमेंडमेंट आई है, कोई जजमेंट आई है, ये अगेंस्ट है या ये फेवरेबल है? सर, इवन द अगेंस्ट जजमेंट्स कैन बी टर्न्ड फेवरेबल फॉर यू। मे यू टेक द केस ऑफ भारती एयरटेल बाय सुप्रीम कोर्ट। 923 करोड़ का एडिशन किया गया था भारती एयरटेल को। भारती एयरटेल ने क्रेडिट नहीं उठाया था। बोलते क्रेडिट क्यों नहीं उठाया? कहता जी मेरे तो 2A में नहीं आया, मैंने क्रेडिट नहीं उठाया। यू नो, एडिशन वाज मेड। दिल्ली हाई कोर्ट ने फेवर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने एडिशन कर दिया। What they said, 2A was merely a facilitator. Actual data is your books of accounts. अगर तुम्हारे books of accounts में ITC था, अगर वहां नहीं भी आया, you should have taken that. So what it wants to, it is a precedent that makes कि okay, 2A is a facilitator, और आया भी तो 2A ऐसे ही था। जो 17, 18, 19, 20 के आप केसेस करा रहे हैं, उसमें कहां प्रोविजन है जो 2A को लीगल बैकिंग देखता है? आपको पता है जीएसटी की दुविधा क्या है? यहां बच्चा बाप से पहले आता है। सीरियसली, यहां केक आता है, वो हाफ बेक्ड आता है, फिर उसको वापस लिया जाता है, फिर उसको ऑल ओवर इंडिया लॉन्च कर दिया जाता है, बट उसके फ्लॉज पहले चेक नहीं किए जाते। फिर वो सिस्टम नहीं चलता, IMS, then it is being withdrawn and then it will be relaunched। यहां सेक्शन में बैकिंग बाद में दी जाती है और इंप्लीमेंटेशन ऑन द पोर्टल पहले की जाती है। एंड द थिंग्स व्हिच आई एम सेइंग इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेइंग, यू नीड टू मेंशन दैट पॉइंट इन योर रिप्लाईज। यू नीड टू रेज कि किस, सर थोड़ा सा हिलाना, थोड़ा सा ऐसे, गुड मॉर्निंग सर। देखो, कसूर उनका नहीं है। अच्छा, ब्रेकफास्ट किया है सबने? भाई मैंने तो पेट भर के किया है, रसगुल्ला एंड ऑल, बेक्ड वाला एंड ऑल, पर मैं जाग रही हूँ और आपको मैं सोने नहीं दूंगी। आई नो आई एम स्टैंडिंग बिटवीन यू एंड योर लंच, बट दैट इज व्हाई आई एम हियर टू बी। तो तब तक खाने नहीं दूंगी जब तक फेक इनवॉइस डाइजेस्ट नहीं हो जाता।
राइट? सो फ्रेंड्स, व्हाट आई वांट टू हाईलाइट कि फेक इनवॉइसिंग ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, जब तक आप ऑब्जेक्शन रेज नहीं करोगे अपने रिप्लाईज में, जब तक आप एक्सेप्ट करोगे, आपको कैंसलेशन का नोटिस आता है। स्यू मोटो कैंसिल किया गया बैक डेट से। जब आपने ट्रांजैक्शन किया था, क्या तब वो नंबर वैलिड था? यस। नंबर किसने दिया था? जीएसटी डिपार्टमेंट ने दिया था। यू नीड टू चेक एंड लेट मी टेल यू, डिपार्टमेंट इज गिविंग द बेनिफिट्स। अगर जब मैंने ट्रांजैक्शन किया, यू नीड टू गो एन एक्स्ट्रा स्टेप टू प्रूव योर पॉइंट। द नंबर वॉज वैलिड, पर्सन की आरसी वैलिड थी, मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन के प्रूफ्स है, टॉल की रिसीट्स है। इट्स अ वेरी वाइबल प्रूफ। डॉक्यूमेंट हमें देना है। नेवर हेजिटेट व्हेन यू आर रिप्लाइंग कि आप लोअर लेवल पे रिप्लाई दे रहे हो कि हायर लेवल पे दे रहे हो। योर रिप्लाई शुड बी एप्ट। कभी कभी तो मैंने ये भी देखा है, आधे पेज का रिप्लाई। वाई? वो तो पहली स्टेज है। सर, जो पहली स्टेज है, जब वहां नहीं दोगे तो अगली स्टेज पे वो एडिशनल एविडेंस बन जाता है। गिव योर बेस्ट, अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री फर्स्ट। अगर हमें इंडस्ट्री की समझ है, उसकी प्रोसेस की समझ है, देन वी कैन सब्सटेंशिएट। आई विल शो यू विद द एग्जांपल्स, विद द रिप्लाईज, द वे वी ड्राफ्ट इट। बट अब ऐसे ही मैंने बोल दिया कि पहले ऑब्जेक्शन रेज करो। देयर आर 12 गोल्डन पॉइंटर्स, कुछ लीगल पॉइंटर्स आई हैव मेड फॉर यू कि आपको चेक क्या क्या करना है। अब उसमें से एक एग्जांपल बताती हूँ। एक बात बताइए, 3B वर्सेस 1, नोटिस 73 का बनेगा कि 74 का? चलो, पीछे से आवाज आई 73। और कोई? बाकियों का कोई सेक्शन नहीं है। गुल 73 से, अच्छा इतनी भीड़ में अगर मैंने बांग्ला सीखी है तो पंजाबी भी सिखा के जावांगी थोड़ी थोड़ी। हाँ जी, 73 और 74? 73। सर मैं बताऊं डिपार्टमेंट क्या कहता है? बोलता है जब तक तो 73 का टाइम पीरियड था 73, 73 का टाइम पीरियड खत्म है तो 74। एम आई राइट? वाई सो? अरे सर और छोड़ो, एक पार्टी को तो कहते 76 में रिकवरी करेंगे तेरे से, उसका तो टाइम पीरियड ही अनलिमिटेड है। क्यों? 74 भी निकल गया था 17-18 के लिए। We need to raise the objection कि अगर आप उसको सप्रेशन में कवर कर रहे हो, दो भाई, एक का 3B वर्सेस 1 73, दूसरे का 3B वर्सेस 1 74। We need to raise the objection. Who has to prove the suppression? Department has to prove the suppression. They should bring the incriminating material on record कि no, this is the reason I am considering it to 70. We do not bother. We just go and reply, अच्छा 3B और 1 में फर्क इसलिए है। आपको नोटिस आता है 61 का, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न। I ask you, you got a notice, ई-वे बिल में डाटा इतना है, जीएसटीआर 1 में टर्नओवर इतना है। ई-वे बिल में डाटा 10 लाख का है और जीएसटीआर 1 में मंथली जो है 8 लाख का है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 लाख। शुड यू रिप्लाई दैट नोटिस, यस और नो? सर, इट इज एन इनवैलिड नोटिस। सेक्शन 61 क्या कहता है? सेक्शन 61 सेज द स्क्रूटनाइज द रिटर्न एंड रिलेटेड पर्टिकुलर्स। मुझे बता दीजिए जीएसटीआर 1 और ई-वे बिल में रिटर्न कौन सी? कोई कहेगा जीएसटीआर 1? नो, it is a statement of outward supplies under section 37. E-way bill is a data which is available on the portal. None of them is a return. And it says scrutinize the return and related particulars. So 3B versus E-way is a valid notice, but 3B versus 1 is an invalid notice. Are you getting it? We need to raise the objection. हम ये नहीं ढूंढते हैं, हम ये ढूंढते अच्छा 3B और 1 में फर्क क्यों आ रहा है? 50,000 से ऊपर होगा, 50,000 से नीचे होगा, ये तो क्रेडिट नोट का है। वी ऑलवेज गो ऑन फैक्ट्स। 74 में नोटिस आता है, क्या उन्होंने बताया सप्रेशन कैसे? नो, लिख दिया देयर इज सप्रेशन ऑफ फैक्ट, हेंस 74। व्हाट इज द बेसिस ऑफ सप्रेशन? अगर सामने वाले की स्टेटमेंट पे रिलाय किया, आपको स्टेटमेंट की कॉपी आई, मांग के देख लेना, मिलेगी नहीं। और मिलेगी नहीं तो हायर फोरम्स में तो फायदा जरूर मिलेगा। सर, इंडिया में लिटिगेशन 1% से भी कम है।
बाकी वेट करते हैं कब उसका डिसीजन आएगा और अब अपने ऊपर लगाएंगे। एम आई राइट? चाहे वो वीकेसी फुटस्टेप्स था इन केस ऑफ रिफंड केसेस, चाहे वो सफारी रिट्रीट का जजमेंट था। अब बोलोगे मैडम वो करके भी क्या हुआ, एक अमेंडमेंट और पूरे 8 साल का सफारी रिट्रीट खत्म। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन द बजट। वो सारी जजमेंट बेस की गई प्लांट और मशीनरी पे, जबकि हाई कोर्ट का बेस ही प्लांट और मशीनरी नहीं था। हाई कोर्ट का तो बेस था ऑब्जेक्ट क्या है। जब ओडिशा हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था, उन्होंने बोला था जीएसटी का ऑब्जेक्ट है फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा वर्डिक्ट बेस किया प्लांट और मशीनरी पे, और जो गवर्नमेंट है उसको 7 साल तक वो गलती नहीं दिखी। हाँ, 8वें साल जजमेंट आई तो अमेंडमेंट कर दी रेट्रोस्पेक्टिवली उठा के, अरे ये तो शुरू से ही प्लांट एंड मशीनरी था, एंड हेंस, और साथ में एक्सप्लेनेशन भी डाल दी, notwithstanding anything contained in any judgment, decree, order, this will be interpreted as plant and machinery since inception. So जिन्होंने भी करंट एसेट में खड़े किए हुए हैं, so that will now know भी, जिन्होंने कहा बिल्डिंग बनाई या आईटीसी ले लेते हैं, सफारी रिट्रीट का जजमेंट आएगा। But whenever you are replying your notices, opportunity is not given. चलिए, आपने गलती से पर्सनल हियरिंग में लिख दिया नो, पर्सनल हियरिंग रिक्वायर्ड, नो, गलती क्या लिख दिया। मुझे बताइए ऑफिसर को पर्सनल हियरिंग देना जरूरी है या नहीं जरूरी है? सर, इफ एनी एडवर्स ऑर्डर इज कंटेम्पलेटेड, इट इज मैंडेटरी, सेक्शन 75 सबसेक्शन 4 बोलता है, you have to give the opportunity in writing or if adverse decision is contemplated. डेट्स मिलती हैं, 15 को आ जाओ, 17 को आ जाओ, 19 को आ जाओ, नॉट वैलिड डेट। अरे इन वन ऑफ आवर केसेस हैज एनीबॉडी गॉट 122 नोटिस फॉर सेंट्रलाइज्ड असेसमेंट्स? वी गॉट। आपको पता है कुछ सेंट्रलाइज्ड केस हो जाते हैं, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, एचजी फेक इनवॉइसिंग का केस है, रिलेट कर रही हूँ। एचजी कंपनी थी मुंबई की, थाने से नोटिस आया कि एचजी कंपनी ने स्टेटमेंट दे दिया मैं तो बोगस बिलिंग में हूँ। 600 पार्टीज को माल सप्लाई किया था एचजी ने, 600 की 600 पार्टीज को पैन इंडिया नोटिस इशू कर दिया गया। और सर, जब तक हमें मैनुअली लेटर आता था ना, आइए और आके अपीयर हुए, वो डेट निकल जाती थी। दे गेव 2 dates, आफ्टर 10 days the letter was received and we got the order। और एक चीज खोल के देखना, सीजीएसटी में आजकल क्या हो रहा है, ऑर्डर मेन बनाते हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब और डीआरसी 07 अपलोड करते हैं सुपरिटेंडेंट। हाउ इज इट पॉसिबल? There are so many flaws that are going. We do not raise the objection, we go on the factual basis. अब ऐसे ही मैंने भुवनेश्वर में बोल दिया, 2 बार ही हुआ कि आपको ग्राउंड्स रेज करने चाहिए, यू मस्ट रेज द ऑब्जेक्शन। एक काउंसिल ने मुझे रिप्लाई भेजा, बोलता मैडम ड्राफ्ट कर दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, क्या अपील में जब आप गए हो, पार्टी का एडिशन हो गया 36 लाख का टैक्स इंपैक्ट, पार्टी अपील में चली गई, कॉन्ट्रैक्टर था, क्या एपिलेट अथॉरिटी उस 36 लाख को बढ़ा के 1 करोड़ कर सकती है? अच्छा यस और नो बोलना। सर थोड़ा सा हिलाना, ऐसे ऐसे, हाँ गुड मॉर्निंग। अच्छा गुड मॉर्निंग को क्या बोलते हैं बांग्ला में? सुप्रभात, सुप्रभात। बताइए। नो, प्लीज गो एंड रीड 107 subsection 11. It says even appellate authority can step into the shoes of adjudicating authority by giving you a fresh SCN, provided SCN का टाइम पीरियड बाकी हो। और इनके साथ यही हुआ, 36 लाख की डिमांड थी, फ्रेश SCN आया और SCN था 1 करोड़ रुपए का। He sent that to me कि kindly do the drafting and send to me. I said okay. I didn't raise any objection. The council called me and said, मैडम आप ही तो बोलती हैं पहले ऑब्जेक्शन रेज करो, तो आपने इसमें ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। मैंने कहा मैंने 2 फाइल सेंड की हैं, एक में ऑब्जेक्शंस है और एक में फैक्चुअल बेसिस पर रिप्लाई। ही सेड व्हाई? मैंने कहा सर आपने नोटिस देखा था? बोलते हाँ।
मैंने कहा सर नोटिस किस में था, 73 में कि 74 में? कहते पता नहीं। मैंने कहा ऑफिसर ने लिखा ही नहीं नोटिस 73 में है कि 74 में है, और अगर 74 में है तो उसको क्या लेना चाहिए था? चार्ज फ्रॉड है, मिस स्टेटमेंट है, सप्रेशन है। क्या उसने लिख के दिया? बोलते नहीं। तो मैंने कहा ओरिजिनल नोटिस किस में था? कहते 73 में। तो मैंने कहा ये किस में माना जाएगा? कहते 73 में। तो मैंने कहा सर 73 का तो टाइम पीरियड निकल चुका। तो बोलते आपने ऑब्जेक्शन रेज नहीं की। मैंने कहा सर तभी तो एआई ह्यूमन ब्रेन को टेकअप नहीं कर सकता। अगर मैंने ये ऑब्जेक्शन आज रेज कर दी तो अगला शो कॉज किस में आएगा? 74 में, क्योंकि उसका टाइम पीरियड बाकी है। लेट द केस गो ऑन फैक्चुअल ग्राउंड्स। हाँ, अगर ये अगेंस्ट डिसाइड होएगा तो हायर फॉरम में ये आपके फेवर में आएगा, क्योंकि 74 का टाइम पीरियड, 73 का टाइम पीरियड तो निकल चुका था। सर 90% ऑफ द केसेस फ्रॉम द ट्रिब्यूनल्स come out on legal grounds. That is why we are waiting for the tribunal to come. Even first appellate authorities in GST are giving good benefits, provided you submit it properly. Now even for the fake invoicing, you know the section, ये आया क्यों? इसमें 3 persons cover किए गए। क्या? सप्लायर, तुम्हें तो 122 में पेनल्टी लगेगी, 132 में तुम्हारा प्रोसिक्यूशन भी होगा, और 83 में तुम्हारी अटैचमेंट भी हो सकती है। सर खुल के डिपार्टमेंट अटैचमेंट्स कर रहा है। अब 3 महीने निकलने तो दो, 4th और 5th मंथ दे इशू यू 79 का नोटिस। Although tribunals are not there, you have to say them कि हमने ट्राइब्यूनल में अपील फाइल करनी है, the amount is deposited in the cash ledger, the pre-deposit. Now सेम इज फॉर द रिसीवर। अब बचता कौन था? किंग पिन, मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड कौन है? सर पार्टी पहले तो आगे पीछे घूमती है। देखो कोरोना से पहले आप फीस मांगते थे ना, तो पार्टी बोलती थी पैसा ही नहीं है, काम ही नहीं चल रहा। रात को 2 बजे मुझे फोन करता है, बोलता है 1 करोड़ घर पड़ा, बोलो क्या करूं? तो मैंने बोला परसों तो आप बोल रहे थे 1 लाख देने के पैसे नहीं है। नहीं मैडम वो कैश पड़ा है ना, बताइए क्या होगा मेरे कैश का। दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन द पार्टी इज इन फिक्स एंड दे सेज सर ये फेक इनवॉइसिंग तो इनके कहने पर हुई है, ये ही मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट है और यही उस पार्टी के चार्टर्ड अकाउंटेंट है। द ट्रांजैक्शन इज बीइंग डन एट द इंस्टेंस ऑफ द पर्सन एंड वी हैव पेड हिम सो एंड सो फी। क्योंकि 2 कंडीशन है किंग पिन के लिए। क्या? किंग पिन या तो you must retain the benefit and at whose instance the transaction is done, दोनों हो जाते हैं। इक्विवेलेंट अमाउंट 122 ने पहले थी 50,000, बोलते 50,000 से क्या होगा, किंग पिन को भी पकड़ो। इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ पेनल्टी 132 में प्रोसिक्यूशन, 83 में अटैचमेंट, तीनों इंट्रोड्यूस कर दिए गए किंग पिन के लिए। कौन से केसेस में? 4 केसेस में। इनवॉइस है, सप्लाई नहीं है, बोगस, अभी डिस्कस करूंगी 171। इनवॉइस नहीं है बट गुड्स एंड सर्विसेज हैं, बिना बिल के माल जा रहा है। आपको पता है फेक इनवॉइसिंग में मेन कल्प्रिट कौन है? द पर्सन हु इज अनरजिस्टर्ड और द कंज्यूमर जो बिल नहीं लेता। कैसे? मेरे पास माल पड़ा, आई हैव द गुड्स विद मी, 1 लाख के हैं एग्जाम्पल। एक पर्सन आता है बोलता है प्लाईवुड दे दीजिए, आईटीसी तो मिलना नहीं साहब, बिल मत दीजिएगा मुझे, डोंट गिव मी द बिल। अरे उसने तो 30,000 का माल बेच दिया, पर उसके स्टॉक में तो आज भी खड़ा है क्योंकि बिल तो कटा ही नहीं। अब अगर वो बिल काटेगा कैश का तो अपनी पॉकेट से टैक्स भरेगा 18%। वो जाता है मिस्टर एक्स के पास, बोलता है देख तेरे को आईटीसी चाहिए, मेरे को आउटपुट पड़ रहा है, चलो आधा आधा। दिस इज व्हाट प्रैक्टिकली हैपेंस। कम से कम मेरा 8% तो बचेगा, 9% तो बचेगा, 9 तेरा 9 मेरा। दिस इज द बिल सेलिंग विच originates fake invoicing. The reasons I have cited before, encashment which leads to fake invoicing.
एंड नाउ इसको कर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने तो पहले किंग पिन को कवर किया, गवर्नमेंट ने ये भी कहा, करते क्या थे, या तो 3B भरते नहीं थे, राइट, भरते थे, भरते नहीं थे, सिर्फ 2 GST और 1 भरते थे, सामने वाले के 2 में क्रेडिट आता था, गवर्नमेंट ने कहा रुक जाओ, 1 नहीं 3B नहीं भरोगे तो 1 भरने नहीं दूंगा। वो और स्मार्ट, 3B भरते थे लाख रुपए से और 1 भरते थे 10 लाख से। गवर्नमेंट ने नेक्स्ट स्टेप ले आए, एक तो सिक्वेंशियल फाइलिंग कर दी और सेकेंडली लिख दिया अगर 1 में अमाउंट 10 लाख और 3B में 1 लाख तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स किसको मानेंगे, हायर को, 10 लाख। फर्क क्या पड़ता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स से? सर जी फर्क ये पड़ता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स की रिकवरी डायरेक्ट 79 में की जा सकती है, क्योंकि वो तो आप डिक्लेयर कर रहे हो ना, डिपार्टमेंट थोड़ी कैलकुलेट कर रहा है। उसी के लिए तो DRC 01B आया था, 7 दिन में जवाब दो, अदरवाइज डायरेक्ट रिकवरी अंडर 79। These are the things which the government has brought. सर इंडस्ट्री से ज्यादा आगे चल रहा है डिपार्टमेंट, their technology, their tools, जितने एनालिसिस उनके सिस्टम पर है ना, the taxpayer needs to change their techniques. The way they are bringing the automation, सर compliance तो खत्म हो जाएगा। आप अभी IMS आने दीजिए, see how you will require the software. Your job is not to do the mechanical matchings, किसमें 1 पैसे का फर्क है, किसमें 10 पैसे का फर्क है, रिफंड की शीट में यही करते हो ना, वो कितने पैसे का भी फर्क हो, HSN की समरी चढ़ती नहीं है जब हम GST और 9 बनाते हैं, we match those, let the machines do their jobs, you analyze the things on technical basis. Now they even introduced 3B की लाइबिलिटी अगर कम हुई 1 से, द नंबर कैन बी कैंसल्ड और सस्पेंडेड। सर शर्ट लेने गए गैंट की, गैंट का शोरूम वाला बोलता है सर मैं शर्ट नहीं बेच सकता, बोलते पैसे दे रहा हूं क्यों नहीं बेच सकता, कहते सर मेरा नंबर सस्पेंडेड है, बोलते सस्पेंडेड क्यों है, सस्पेंशन में यू कैन नॉट इशू एन इनवॉइस, क्यों है, मेरी 3B में अमाउंट कम था, 1 में अमाउंट ज्यादा था, 0 एक्स्ट्रा लग गया। थिंक द लेवल ऑफ हरासमेंट। और CA साहब तो 10 दिन के लिए US से है, जवाब जाएगा नहीं, सेटिस्फेक्शन होगी नहीं, नंबर खुलेगा नहीं। और 79 की जो रिकवरी प्रोसीडिंग्स हैं वो ऑर्डर नहीं है जिसके अगेंस्ट हम अपील में चले जाए, ओनली रेमेडी इज टू गो टू रिट, राइट। नाउ 86B, हाउ मेनी ऑफ यू आर फॉलोइंग रूल 86B? 50,000 अगर आपका पर मंथ 50,000 से ऊपर है तो आपको 1% टैक्स कैश में भरना है। वी आर नॉट, और अब तो डिपार्टमेंट ने 86B फॉलो ना करने पर कैंसलेशन के नोटिसेस देने शुरू कर दिए। सो दीज आर द स्टेप्स दैट आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट। नाउ लेट्स हैव अ लुक फेक इनवॉइसिंग होती क्या है, फिर इसको लिंक करूंगी, जो आपको नोटिसेस आ रहे हैं आपने उसका जवाब कैसे देना है, जो R और S का एग्जाम्पल हम कर रहे थे। नाउ दिस इज द पर्सन, और सर देखना कि आपको नोटिसेस कैसे आ रहे हैं और वो आने चाहिए या नहीं। मैंने आपको केस बताया कि एक पार्टी है थाने की, 600 पार्टीज को उसने माल सप्लाई किया है, 600 पार्टीज को 1 शो कॉज नोटिस, एक शो कॉज नोटिस दिया गया और असेसमेंट हुई HG की 600 की 600 पार्टीज की एडिशन। ना हमें पर्सनल हियरिंग मिली, और मजे की बात सुनिए, HG का ऑर्डर पास किया थाने कमिश्नरेट ने और मेरा DRC 07 इशू किया स्टेट ऑफ पंजाब ने। क्या उसने मुझे हियरिंग दी? नहीं दी। क्या उन्होंने केस सुना? नहीं सुना। This is violation of principle of natural justice. We need to stand for the same. Now see how this happens. First time, this is Mr. A. अरे ये तो सिर्फ बिल देने का काम करता है। देखो सर्कुलर आप बनाओगे, क्या करता है ये? He only gives the bill. सिर्फ बिल देता है। मुझे बताइए इसने गुड सप्लाई किए या सर्विस? गुड सप्लाई किए या सर्विस?
नोट कर रहे हैं, नीदर गुड्स नॉर सर्विस। अरे बिल तो इज अ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, इट्स नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज। टैक्स लगेगा? नहीं लग सकता, सप्लाई नहीं हुई है। आई गिव यू एन अनदर एग्जांपल, आपके क्लाइंट के यहाँ इंस्पेक्शन हुई, सर्च हुई, प्लाईवुड का काम करता था, कच्चे की पर्चियां मिल गई। जनरली पार्टी के यहाँ होता है, ऊपर कच्चे का रुक्का लगा होता है, नीचे पक्के का बिल होता है। वो बिल तो होता है 10 लाख का और माल गया होता है 18 लाख का, राइट? नाउ ऑफिसर सेज, आई एम पोजिंग यू ऑल अ क्वेश्चन। आपको पार्टी का फोन आता है कि मेरा इस तरह से पकड़ा गया, ऐसे ही हमें भी आया कि इंस्पेक्शन हुई है एंड यू सी व्हाट टू बी डन। आई वाज नॉट देयर इन द टाउन, पार्टी के अपने रिलेशन थे, पार्टी बोलती है ओके मैं जाके सेटल कर लूंगी, आई विल आस्क। दे चेक दोस डॉक्यूमेंट्स एंड ही सेड 20 लाख रुपए मैंने भर दूंगा इन कैश फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट्स आफ्टर स्क्रूटनी। नाउ सी वेयर यू कैन मेक द चेंज। 20 लाख कैश भरने में फाइनलाइज किया। ऑफिसर सेड मैडम 10 लाख टैक्स में भर दीजिए, कुछ इंटरेस्ट भर दीजिए, बाकी 100% पेनल्टी भर दीजिए। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द पेनल्टी इन दिस केस? व्हाट शुड बी द पेनल्टी इन दिस केस? कोई तो रेशो है? हाँ, ये पर्ची ज्यादा जल्दी नहीं आ गई? अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। हाय, इतनी दूर से बुलाया रात को 3 बजे उठा के, अभी तो नहीं जाती मैं, खाने के लिए रुकना पड़ेगा आज तो। आर यू रेडी? हाँ चलिए। हाँ हाँ, देखो चिंता तो अपनी फ्लाइट की है, दोबारा पैसे खर्चने पड़ेंगे। चलिए, आई एम जस्ट किडिंग, हैव अ लुक। सो व्हाट इट सेज, ए ने बी को इनवॉइस इशू किया। अच्छा मेरी एग्जांपल में बताओ पेनल्टी कितनी लगनी चाहिए? ऑफिसर सेड 100%। मैंने कहा सर कैसे? कहता जी आपके यहाँ आए थे, हमें कच्चे की पर्चियां मिली, 122 में 100% भर दीजिए। आई सेड सर टैक्स किस में भरूं? कहता 73 में। मैंने कहा अगर मैंने 73 में भर दिया तो पेनल्टी कितनी हो जाएगी? 0%, क्योंकि शो कॉस्ट से पहले ही भर दिया मैंने, राइट मैडम? तो बोलता है फिर? मैंने कहा किस में भरूं? कहता 74 में भर दो, क्योंकि हमने तो इंस्पेक्शन की है। तो मैंने कहा सर मैं तो पहले ही कह रही थी 74 में टैक्स ले लो, शो कॉस्ट से पहले टैक्स दे दिया, कितने % पेनल्टी? 15%। ही आस्क्ड मी मैडम जब रास्ते में चलता माल पकड़ा जाता है तो पेनल्टी लगती है 200%। कौन सा सेक्शन है? 129। मैंने आपके वहां घुसकर टीम लेकर सारी इनवॉइसिंग फाइंड आउट की, नाउ यू आर सेइंग पेनल्टी इज 15%। आई सेड सर 15% ही लगेगी। कहता नहीं, फिर तो लगेगी 115%। आई सेड वो कैसे? कहता 15% लूंगा 74 में और 100% लगाऊंगा 122 में। कैन ही डू सो? नो। Section 75 subsection 13 which says for one offense there can only be one penalty। इसका क्रक्स समझते हैं आप? पार्टी कमिट करके आई थी कि मैं 20 लाख दूंगी, आधा टैक्स आधी पेनल्टी और इंटरेस्ट। पेनल्टी 100% से कम हो गई 15% में। आईटीसी पड़ा था, आईटीसी से पेमेंट करिए, वाई कैश? ओनली इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। आपकी कोई भी एडिशन होती है, चाहे इंस्पेक्शन में हो चाहे सर्च में हो, यू कैन पे थ्रू द क्रेडिट लेजर। सो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच वी नीड टू। अब मैंने क्या कहा? जहां अंडरलाइन टैक्स होगा ऑफिसर तुम्हें 73 या 74 में आना ही पड़ेगा। तो ऑफिसर पूछता है मैडम फिर 100% पेनल्टी लगेगी कब? मैंने बोला जब फेक इनवॉइसिंग, जहां सिर्फ क्या गया है? बिल। वहां टैक्स तो है ही नहीं, सप्लाई तो है ही नहीं। एंड दिस इज व्हाट इज द बेस ऑफ सर्कुलर 171 ऑल्सो। दिस इज ए, तुम तो सिर्फ इनवॉइस देने का काम करते हो। देन सेकेंड, अब ये वो है मर्चेंट ट्रेडर जो डायमंड लेने गया था, उसने क्या किया था? यानी मैंने बिल लिया था,
डायमंड लिए थे इनसे और बिल लिया था इनसे, और वही डायमंड उठा के मैंने इनको बेच दिए थे। क्या मैंने ट्रांजैक्शन इन गुड्स की? यस, मैंने तो डायमंड्स लेके बेच दिए। मैंने आईटीसी लिया और उस आईटीसी को यूटिलाइज कर लिया। मुझसे डिपार्टमेंट टैक्स वापस मांगेगा, भाई आईटीसी दीजिए, और आईटीसी देगा तो रिकवरी किसमें करेगा? 74 में। पेनल्टी कितनी लगेगी? 15%। थर्ड केस ऑफ फेक इनवॉइसिंग। कुछ भी नहीं है, कोई अंडरलाइन गुड्स और सर्विसेज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिल पास किए जा रहे हैं, A to B, B to C, C to D, D to E, अगेन E to A। टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। क्या लगेगी? सिर्फ पेनल्टी लगेगी। हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। हैव अ लुक, आई हैव टू स्किप सर्टेन स्लाइड्स। अच्छा, उससे पहले 122 सेक्शन बताती हूँ। सर 75 सेक्शन जो आप इग्नोर करते हैं is one of the vital section when you are fighting the litigation. 75 says OP4 opportunity देनी पड़ेगी, 3 adjournments होंगी और valid dates होनी चाहिए, speaking order होना चाहिए। Do you know what is speaking order? Each and every, आपके रिप्लाई को उठाया, स्कैन करके डाल दिया, is not a speaking order. Speaking order is each and every point of view should be picked and should be controverted by the officer. That is called a speaking order. Third, it says एक notice and order should be on same line. I yesterday got a notice order, पार्टी ने रिफंड अप्लाई किया था, ऑफिसर ने रिफंड तो रिजेक्ट कर दिया, बोलता है तुम्हारे FIRC पूरे नहीं है, उसके ऊपर टैक्स दीजिए। He cannot do so. Check legally, वो नहीं कर सकता क्योंकि उसको सेपरेट प्रोसीडिंग 74 में चलानी पड़ेगी। वो RFD के साथ मेरे से आउटपुट पे टैक्स डिमांड नहीं कर सकता। रेज द लीगल, सर नीचे बेनिफिट मिले ना मिले, आपके रिप्लाई में लीगल पॉइंट्स होने चाहिए। इफ द लिटिगेशन परसिस्ट यू विल गेट द बेनिफिट। एक पेनल्टी एक डिफॉल्ट के लिए, दिस इज व्हाट आई यूज्ड इन द केस जब मैंने आपको एग्जांपल दिया प्लाईवुड वाला, राइट? नाउ दिस इज सेक्शन 122, 21 ऑफेंस है सर। सबसे पहले 2 नंबर क्लॉज देख, 2 नंबर कहता है मैंने गुड्स और सर्विसेज दिए नहीं, सिर्फ इनवॉइस दिया, तो मुझे पेनल्टी कहाँ लगती है? 122(1) में कितनी लगती है? 100% ऑफ द टैक्स। अब सोचिए जो पर्सन सिर्फ बिल दे रहा था उसको पेनल्टी कहाँ लगेगी? 122(1)(2) में 100% ऑफ द टैक्स sought to be evaded. Have a look. और जो ITC गलत लेता है उसको पेनल्टी कहाँ लगती है? क्लॉज नंबर 7 में। Now let's see. I am explaining this with the circular 171. Have a look. It is here. अब देखना 171 किस तरह से आता है। फर्स्ट, अगर तुम बिल देने का काम करते हो टैक्स नहीं देना है भाई, क्या देना है? सिर्फ पेनल्टी 122(1)(2) में। बी, तुमने आईटीसी लिया, केस नंबर 2, तुम्हें तो टैक्स वापस करना है जो आईटीसी लिया था, रिकवरी किसमें होगी? 74 में। केस नंबर 3, सर्कुलर ट्रेडिंग, सिर्फ बिलिंग देने का काम करते हैं, रिकवरी किसमें होगी? सबको 122 में पेनल्टी लगेगी। अब वो मेरा आर वाला एग्जाम्पल याद करना। मेरी पार्टी आर को कहा गया टैक्स भरिए क्योंकि पिछले एस को नोटिस आया हुआ है। सर एस को नोटिस किस सेक्शन में आया? 74 में। और 171 कहता है केस नंबर 2, अगर एक पार्टी को 74 में नोटिस आ गया तो सारी चेन करेक्ट। सी को तो उन्होंने कोई पेनल्टी लगाई ही नहीं, क्यों? उसने तो बिल भी मेरे से लिया और उसने गुड्स भी मेरे से लिए। पिछली चेन अगर करेक्ट थी, इट मींस इन माय केस इफ एस हैज बीन इशूड द शो कॉज अंडर 74, वो मेरे से कोई रिकवरी नहीं कर सकते। डिपार्टमेंट न्यूज कैसे देता है? 100 करोड़ का रैकेट पकड़ा गया, क्या करते हैं? सबकी एडिशन कैलकुलेट कर देते हैं,
अगली पर्ची आने वाली है, फटाफट से कंक्लूड कर। हर 18 करोड़ नो, व्हेन वन पर्सन इन द चेन, और वो बलि का बकरा कौन है? परचेजर, जिसने आईटीसी लिया है। अगर उसने दे दिया, एंटायर चेन गोज करेक्ट। नाउ लेट मी शो यू वन ऑफ द specimen of this reply which I want to show you, and here it is. जो मैंने बोला, everything is the part of the reply. I can see it on my screen. I hope you can too. All right, have a look. सर, इस पार्टी को भी नोटिस आया था 2 करोड़ का। पहली बात, what is the time? चलेगा? All right. ये देखिए, पार्टी को नोटिस आया था, तुम्हारी पिछली 4 पार्टीज को बोगस इनवॉइसिंग में नोटिस इशूड है, क्यों तुम्हारा आईटीसी डिसअलाउड ना कर दिया जाए? राइट, व्हेन आई चेक्ड इट, आई रेज द पॉइंट्स, क्या मेरी पिछली पार्टी का नंबर कैंसल्ड था जब मैंने ट्रांजैक्शन किया? आंसर वाज नो। क्या वो रिटर्न फाइल करता है? हाँ करता है। एस, पिछली पार्टी। आई टुक द स्टेटस आउट and I pasted it here. Have a look. The screenshot. Sir, officer reply पढ़ता नहीं है, पढ़ाना पड़ता है। वो पिछला पेपर खोल के नहीं देखेगा। Your reply should be self-speaking. अब इनकम टैक्स में तो हम ये समझ ही चुके हैं, where the assessments are faceless. Right? Now have a look. I said, ये देखिए, मैंने उसे बोला, आपने मुझे कह दिया कि एस को नोटिस आया है, क्यों तुमसे टैक्स रिकवर ना कर लिया जाए? एस ने तो और ए बी सी डी ई एफ जी एच आई सबको माल बेचा है। वाई ओनली मी? वाई चेरी पिकिंग? अगर आपको एक्शन लेना था तो एक्शन किसको लेना चाहिए था? डीजीजीआई को। और ये गवर्नमेंट के अपने सर्कुलर 171 के अगेंस्ट है। अगर एक पर्सन को 74 का नोटिस आ चुका है तो किसी और से टैक्स की रिकवरी नहीं की जा सकती। राइट, आई जस्ट गॉट ऑन 28 Feb द फेवरेबल ऑर्डर फॉर दिस, एंड सी, मैंने सबके बिल लगाए थे। दिस वाज द केस ऑफ मेटल स्क्रैप, जिसमें सबसे ज्यादा बोगस इनवॉइसिंग का प्रॉब्लम आता है। कारण अभी बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में। So I put the bills, मेरा तो प्रोडक्ट ही बदल गया था। पिछले वाले का मेटल स्क्रैप था, मेरा बिलेट्स थे। ऑफिसर didn't bother to consider how he can apply the ratio. और जब मैंने उस पार्टी से ट्रांजैक्शन किया था, उसका स्टेटस वैलिड था। See, I have put it there, it was an active number. जब मैंने उससे ट्रांजैक्शन किया था, वो रिटर्न्स भरता था। And the department has given the benefit for the same. You know कैसे करते हैं bogus invoicing? Have a look. Sir, मैंने इस रिप्लाई में 174 को अपना 171 को अपना टूल यूज किया कि अगर आप 2% से टैक्स लोगे तो वो टैक्स गलत है। 171 गवर्नमेंट के सर्कुलर के अगेंस्ट है। लेकिन जहां मुझे 171 का नोटिस आया है, आई कैन स्टिल कंटेस्ट। जो एचजी वाला केस था, अगर डिपार्टमेंट ने एचजी से थाने में टैक्स रिकवर करा लिया तो मेरी अगली चेन तो क्लियर है। केस नंबर 2, आप मुझे कैसे 122 का नोटिस दे रहे हो? डिपार्टमेंट, हाई कोर्ट कहता है एक पार्टी को मल्टीपल ईयर्स के लिए नोटिस नहीं आ सकता इकट्ठा। आप 600 पार्टीज को एक शो कॉज देते हैं। Are you getting it? Where is my confidence? My name, my GSTN number, my amount, bogus invoicing. आज कोलकाता में बैठ के मुझे पता है, अच्छा पंजाब की उस कंपनी को कितना डैमेजिंग हो सकता है कि इवन इन्फोसिस हैज टू कम विद अ पब्लिक स्टेटमेंट कि भाई ये 33,000 करोड़ का जो नोटिस आया, दैट इज नॉट करेक्ट। उसका शेयर 2% डाउन था उसका। Are you getting it? It can be so damaging to the reputation. How we need to fight? We need to show that look, this is against the circular and we need to talk about it. This is how the even अगर आपको नोटिस, अच्छा एक बात बताओ, सेंट्रलाइज नोटिस आ सकता है जीएसटी में? क्या आपके जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर से आना चाहिए? हाँ, jurisdictional officer. Sir, then read circular 169. Read with the notifications I have given in the next slide.
स्लाइड्स आर नॉट विजिबल. देखा टाइम खत्म है तो स्लाइड दिखेगी नहीं. अभी है सर. यू नीड नॉट टू राइट. मैं फिर भी नहीं उतरूंगी. 10 minutes. Let me complete it. 10 minutes. Are you ready for 10 minutes? हाय थोड़ी तो ऊंची बोलो. हाँ 10 minutes. Sir, let me just complete the topic. What is the time? 2 o'clock exact. Done. Are you ready for rapid fire? हाय आवाज ऊंची. तैयार हो? ओके चलिए. दिस इज हाउ द फेक इनवॉइसिंग टेक्स प्लेस. यू नो ये होता है सर. एक कच्चे की मार्केट चलती है, उसके अपने रेट्स हैं. गुड्स ऊपर आ रहे हैं. इफ यू कैन सी द ऑरेंज लाइन, 80 रुपए का भाव, आगे 85 में मिलेगा, आगे 91 में मिलेगा. मैन्युफैक्चरर को कितने में मिला? 91 में. दूसरी मार्केट चलती है टैक्स वाली, बिलिंग वाली, जो हमने स्टार्टिंग में किया था. उसमें बिलिंग कैसे चलती है? 18% टैक्स है ना. देखना कैसे चेन में डिवाइड होगा. नीचे वाला पर्सन कहता है 18 का आउटपुट, बोगस आईटीसी ले लिया 20 रुपए का ऑल अदर आईटीसी में. अब रिमेनिंग आज भी उसके पास 2 रुपए आईटीसी पड़ा है. चेक लेगा 118 रुपए का, नीचे से कैश देगा 113. कितना बेनिफिट रिटेन कर गया? 5 रुपए. अपना मार्जिन रख गया. अगला पर्सन अगेन अपना मार्जिन रखेगा 3 रुपए, उससे अगला 3 रुपए. मैन्युफैक्चरर को बिल कितने का मिला? मैन्युफैक्चरर को मिला 100 रुपए का बिल. सर माल कितने में खरीदा उसने? 91 रुपीस में. हैव अ लुक. गुड्स तो उसके पास ऑलरेडी आ चुके हैं 91 में. बिल कितने का ले लिया? 100. आईटीसी कितने का लिया? 18. गवर्नमेंट ने ये देखिए 18 रुपए का आईटीसी. इसने बेनिफिट रखा 3, इसने रखा 3, इसको भी हुआ 7 रुपीस का बेनिफिट. व्हेन यू विल रीड दिस स्लाइड, माल भी आया 91 का. इनकम टैक्स में खर्चा कितना मिला? 100 रुपए, क्योंकि बिल कितने का था? 100 रुपीस का. सो इट इज ऑल दैट. अब गवर्नमेंट ने इसको ब्रेक कैसे किया? बाय इंट्रोड्यूसिंग टीडीएस. कितना परसेंट? 2%, 2%, 2%, 2%. जब मल्टीपल स्टेज में 2% लगेगा, कहां से मार्जिन रिटेन होगा? और स्टार्टिंग में बोगस को खत्म करने के लिए लगा दिया आरसीएम. ऑल अदर आईटीसी में लोगे कैसे? आरसीएम. अच्छा, मेटल स्क्रैप और बाकी गुड्स में क्या फर्क है? देखो माइक भी बंद होने वाला है ना. रबदा दिता है मेरे को, गला बहुत है. हाँ, नो वरी सर. राइट. So what they want to say, they wanted to. अब जब हर स्टेज पर टैक्स पेयर का दिमाग इससे 2 कदम आगे चलता है. गवर्नमेंट क्या करती है? मैंने बोला ना, टीडीएस के सेक्शन में जहां सारी गवर्नमेंट एंटिटी थी, वहां एक मेटल स्क्रैप का प्लेयर डाल दिया. और वहां 2.5 लाख की कॉन्ट्रैक्ट लिमिट थी. और जिसने इवेजन करनी है, वो 2.5 लाख की कॉन्ट्रैक्ट लिमिट को 2.5 लाख का बिल पड़ता है, और सारे बिल काटता है 2.5 लाख से नीचे. अल्टीमेट स्टेज पे जो मैन्युफैक्चरर है, सिर्फ वो 2% टीडीएस भर रहा है. द गवर्नमेंट मस्ट कम अप. इज बिल ए कॉन्ट्रैक्ट? आई आस्क यू, क्या बिल कॉन्ट्रैक्ट है? नो. कॉन्ट्रैक्ट इज वेयर 2 parties साइन. बिल इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. बिल इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांसफर. अब उसमें 2.5 लाख का बेनिफिट ले रहे हो. सूनर और लेटर ईदर द गवर्नमेंट शुड कम विद द क्लैरिफिकेशन, और एल्स दीज ऑल विल बी इन अ फिक्स. सर बाकी गुड्स और मेटल स्क्रैप में फर्क क्या है? बाकियों में परमानेंट आरसीएम है. मेटल स्क्रैप में तभी आरसीएम है अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है. सो यू नीड टू चेक कॉटन एटसेट्रा अदर्स में और मेटल स्क्रैप में. दिस इज द डिफरेंस. नाउ आई शो यू. आपको जो कैंसिलेशन के नोटिस आ रहे हैं, हाउ वी आर सपोज टू रिवर्ट इट. और 1-2 पर्सन ने मुझे 128A के लिए भी क्वेरी की थी. ड्यू टू द पॉसिटी ऑफ टाइम आई विल नॉट बी एबल टू टेक 128A, बट येस एमनेस्टी स्कीम की PPT I will be sharing with you all with all the examples, rules, and sir amnesty scheme के लिए I have prepared one flow chart also.
which is just of 2 pages. 31 March आ रही है. Might be it will be extended or not is a different question, but this flow chart will give you an idea. अगर ये आपको दिखेगा, so this is only a 1-pager flow chart जो कि सारी एमएनएसटी स्कीम को बताता है. एलिजिबिलिटी चेक क्या लगेंगे, प्री कंडीशन क्या होगी, स्टेप 1 क्या करना है, स्टेप 2 क्या करना है. सो द एंटायर स्कीम इज बीइंग समराइज्ड इन 2 PDF pages. So I hope you will find it useful. Fake invoicing ka I will share. Just last 1 minute and let me show you ki how one should reply to the notices. Let me just show you this reply. सर, जब नोटिस आता है, जब आप उसका रिप्लाई देते हैं, प्लीज गिव ऑल द फैक्ट्स. हैव अ लुक. नोटिस आया है, फेक इनवॉइसिंग का है, प्रूव करिए जब मैंने ट्रांजैक्शन की थी सब जेन्युइन था, रिटर्न ने फाइल्ड थी. गिव द ट्रेल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, व्हाट ऑल यू कैन पुट. दिस इज अ लिस्ट. मेरे पास इनवॉइस भी है, ई-वे बिल भी है, ट्रांसपोर्ट की रसीदें है, टॉल की रसीदें है, सामने वाले जीएसटी का सप्लायर का सर्टिफिकेट है, उसकी 3B और 1 फाइल्ड है. If you are able to substantiate the movement, the case will come in your favor. And apart from this, कहां वायलेशन किया मैंने सेक्शन 16 का, सारा कहां से आता है, सेक्शन 16 से आता है ना. So all the conditions of section 16 stands complied. Apart from that, still if the department wants to say not allowed, under which section, which provision, give your complete submission along with all the case laws, and even the pre-GST case laws are of utmost importance. अरे post GST के तो आए ही आपके कोलकाता से हैं. May it be LGW Industries, may it be Sunchita Kundu case, whatever. So you are the generator of the favorable cases. Quote those. DGA, do not hesitate, it is the first stage or the second stage. Substantiate your points with all the pointers, even if the case laws are of pre-GST regime or bhar ke hai. And let me say you, if you represent your case in a nice way, the outcomes will be different. And go to the depth of the industry. Many of you might have heard that Kaju wala example. सुना है ना मेरा? End कर रही हूँ उससे. If I was representing their case, department raised an objection. Why I am posing it? हमें industry का knowledge कितना चाहिए? They said it is not manufacturing. I ask you, it's an agri product or a non-agri product? Cashew खाते हो ना काजू? Agree, non-agree? Agree? Non-agree? It's a non-agree product. परचेज भी 5 पे होता था, बिकता भी 5 पे था. डिपार्टमेंट बोलता है रिफंड नहीं दूंगा इन्वर्टेड ड्यूटी का. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का, कहता है वर्ड इनपुट नहीं है, इनपुट्स है. पैक करने के लिए टिन खरीदे, हाँ खरीदे. पैक करने के लिए आपने वो फ्यूल खरीदा, हाँ खरीदा, 18%. मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स 28%. हो तो गए इन्वर्टेड ड्यूटी में कवर्ड. आउटपुट 5%, इनपुट एट मल्टीपल रेट ऑफ 5, 12, 18, 28. Even as S can play an important role. Take the industry knowledge. वो कहते थे कि ये एक ट्रेडिंग है, ये ट्रेडिंग नहीं थी. 7 दिन लगते एक काजू का दाना बनने में. 12 करोड़ की मशीनरी मेरे P&L बैलेंस शीट में खड़ी है. गिव दैट. पॉल्यूशन का मेरे पास सर्टिफिकेट है. शो दैट. बैंकर्स एमएसएमई लोन्स में लिए, मुद्रा लोन्स के लिए उसको मैन्युफैक्चरिंग मानते हैं. गवर्नमेंट की आत्मनिर्भर साइट कहती है कैश्यू प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नीड्स अ बूस्ट. आई वेंट देयर, 17 प्रोसेसेस थी. I took 17 packets with me. I opened the first one and I said to the officer, with your due permission, tell me what is the product. He said, I am unable to recognize. I opened 17th packet. I said, this is the cashew and this is the raw material. If you are not able to recognize what the product has come from first stage to 17th stage, how you can say it is trading? We got the favorable 7 crore ka refund tha. But you need to go and
3.5 घंटे उसकी पीवी करने में लगे डिपार्टमेंट को। पीवी की रिपोर्ट थी ही नहीं। वेयर इज द रिलायबल डॉक्यूमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट? आरयूडी का है। वी डू नॉट आस्क फॉर, वी गो ऑन गिविंग द रिप्लाईज। सो वी नीड टू बी वेरी विजिलेंट, वी नीड टू शो that how the things must move. So with this, I end up my deliberation for the day. Short, but I enjoyed the interaction with you. Hope you would have find it useful. Thank you so much. इसी तरह से जीएसटी चलता रहे, हम आपको मिलते रहे और ये पर्चियां कम आती रहे। राइट? थैंक यू सो मच। So now I request CA Vivek Banka to offer formal vote of thanks, please. Thanks, Manish ji. Wow, what a nice deliberation. On behalf of IPCA, I would like to thank CA Achal Kapoor ji for sharing your views on GST litigations, fake invoices, etc. Ma'am, you explained the said topic in a very nice and lucid manner. Really, the session was very informative, and I am sure it will give the value addition to our professional knowledge. Friends, please give a big round of applause for Achal Kapoor. Now, I request CA Dilip Agrawal, our past participant, to come forward and offer a memento to Achal ji. Yeah, thank you, Dilip bhaiya. Now it's the lunch break. We will assemble again 20 minutes. after 20 minutes. Okay, thank you.